کمالیہ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کے کم وولٹیج کے سبب قیمتی برقی آلات چلنے لگے ہیں، جس سے شہری شدید پریشان ہیں۔ رپورٹ کریں گے اسد راجپوت۔ کمالیہ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی وولٹیج انتہائی کم ہے، جس سے علاقہ مکینوں کو بجلی سے چلنے والی اشیاء چلانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مامو کانجن روڈ، کچہری روڈ، محلہ علی ٹاؤن، کشمیر ٹاؤن میں بجلی کا لوڈ انتہائی کم ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کی آئے روز قیمتی اشیاء جلنا معمول بن چکا ہے، جبکہ لوڈ کم ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں کام کرنے والے کاروباری افراد بھی سارا دن بجلی کا لوڈ پورا نہ ہونے کی وجہ سے فارغ بیٹھے رہتے ہیں۔ بجلی کا بہت گھٹ وولٹ آ رہے ہیں، ساڑیاں مشینوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے اور روز ہی تو بہت تنگ ہوئے پے ہیں، لہذا وولٹ پورے کیتے جاویں۔ ایسا کہ علاقے میں لوڈ شیڈنگ تو کم ہو رہی ہے، لیکن لوڈ بہت کم ہے، جس وجہ سے فوٹو اسٹیٹ مشین والوں کا کام بالکل بند ہو چکا ہے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں۔ انتظامیہ سے اپیل کی جاتی ہے کہ لوڈ کو پورا کریں۔ کئی علاقوں میں بجلی کا لوڈ کم ہونے کی وجہ سے لوگ پانی کی بوند بوند کو بھی ترس گئے ہیں، جبکہ کاروباری افراد کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ پچھلے 2 ماہ سے چلا آ رہا ہے۔ فسکو انتظامیہ کو کئی بار آگاہ کر چکے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اہل علاقہ نے افسران اعلیٰ سے اس صورتحال پر فلفور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ قیامت خیز گرمی میں بھی احمد پور سیال میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ بجلی بندش کے باعث شہریوں کا جینا محال ہو گیا ہے۔ اسی پر رپورٹ دیکھیے تصور عباس کی۔ احمد پور سیال اور گرنوا میں ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر نکل آیا ہے۔ بجلی بند کر کے شہریوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ لائٹ کی بہت پریشانی ہے، غریب آدمی کا کہاں جائے، کس جگہ جائے؟ رات صبح اٹھتا ہے، ادھر آتا ہے، دکان کھولتا ہے، کہتا ہے کہ چلو کام پہ جا رہا ہوں، ادھر لائٹ نہیں ہوتی، سارا دن بیٹھ کے خالی گھر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد بس یہ ہے، گھر کا سرکل بہت مشکل چلتا ہے۔ ایک طرف تو قیامت خیز گرمی نے شہریوں کا جینا محال کر دیا، تو دوسری طرف بجلی کی آنگ مچولی شہریوں کا برا حال کر دیتی ہے اور انہیں نڈھال کر دیتی ہے۔ بجلی کی بندش مقامی معیشت پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہیں، کاروباری سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دکانداروں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے ایک طرف مہنگائی نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، تو دوسری طرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث ان کے کاروبار کو شدید دھچکا لگتا ہے۔ بجلی کی بندش کی وجہ سے گھریلو امور بھی شدید متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں بہت خسارہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم بہت پریشان ہیں اور گرمی کی شدت کی وجہ سے بھی ہم پریشان ہیں اور کسٹمر ہمارے پریشان ہوتے ہیں، اس لیے ہمارا روزگار بھی ختم ہوتا جا رہا ہے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہمارا جو روزگار ہے نا وہ بجلی کے وابستہ ہے اور بجلی بند ہے، اس کی وجہ سے ہماری روزگار بھی بند ہوئی پڑی ہے۔ شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین واسط اقبال کے ساتھ تصور باز، سچ نیوز، احمد پور سیال۔ بکھر میں ہونے والی طوفانی بارش نے ضلع بھر میں تباہی مچا دی۔ شہر میں 102 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے باعث گلیاں محلے پانی سے بھر گئے، جبکہ شہر کی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ اسی پر رپورٹ کریں گے ناصر عباس۔ بکھر میں ہونے والی طوفانی بارش نے ضلع بکھر میں ہر طرف تباہی مچا دی۔ بکھر میں 102 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو کہ پنجاب بھر میں پہلے نمبر پر سب سے زیادہ بارش تھی۔ بارش کی وجہ سے گلیاں محلے پانی سے بھر گئے، جبکہ بکھر کی رابطہ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ طوفانی بارش کے باعث درخت کھمبے جڑوں سے اکھڑ گئے۔ بارش کے مختلف مقامات پر کئی بوسیدہ مکانوں کی چھتیں اور دیواریں زمیں بوس ہو گئیں، جس سے لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی سامان بھی بارش کے پانی میں ڈوب گیا۔ کھمبے اور تارے ٹوٹ جانے کے باعث بجلی کا نظام بھی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ شہر کے اکثر علاقوں میں اب بھی 2 سے 4 فٹ تک بارش کا پانی جمع ہے۔ طوفانی بارش نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے تمام اداروں کی فرضی کارروائیوں کو بھی بے نقاب کر دیا، جبکہ دریا خان روڈ، کالج روڈ، چشتی روڈ، بہر روڈ، گڈولا روڈ، لال درویش روڈ، فیضان مدینہ روڈ، آفیسر کالونی، مین بازار، ماڈل بازار، جیر روڈ سمیت تقریباً تمام نواحی علاقوں میں بھی بارش کا پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو پیدل چلنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے، جبکہ ریسکیو 1122 کے علاوہ کہیں بھی ضلع انتظامیہ دکھائی نہیں دے رہی۔ بارش سے کاروباری زندگی معطل، دکانیں بند، شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ مرکزی قبرستان سمیت دیگر قبرستانوں میں بھی بارش کے پانی نے بڑی تعداد میں قبروں کا نقصان پہنچایا۔ بکھر شہر کا واحد ریلوے انڈر پاس پانی سے مکمل طور پر بھر گیا، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ مزید 2 سے 3 دن تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ کیمرامین سمیع اللہ شاکری کے ساتھ ناصر عباس بلوچ، سچ ٹی وی، بھکر۔ تلمبہ میں صفائی کی ابتر صورتحال ہے۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگنے اور سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے ایاز احمد۔
बल्दिया तलम्बा इंतजामिया की अदम तवज्जुही के सबब गुंजान आबादी वाले इलाकों में सफाई की अबतर सूरत हाल को बेहतर नहीं बनाया जा सका। एक तरफ हुकूमत खिदमत आपकी दहलीज पर काम के दावे कर रही है, दूसरी तरफ तलम्बा में अभी काम शुरू न किया जा सका। शहर की अहम शाहराहों और तजारती मराकज में सीवरेज का निजाम मफलूज होने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर की गुंजान आबादी वाले इलाकों में गंदगी के ढेर और गटरों और नालियों का पानी सड़कों पर जमा होने से लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपकी दलील पर वज़ीर आज़म ने ये प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन तलम्बा में इसका कोई नाम निशान और कोई बंदा नजर नहीं आता। शहरियों ने बल्दिया तलम्बा इंतजामिया को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इंतजामिया ने सफाई की अबतर सूरत हाल को बेहतर गुंजान आबादी वाले इलाकों को ये अक्सर नजरअंदाज कर रखा है। कैमरामैन उसामा मजीद के साथ यासू सच न्यूज तलम्बा। आरिफ आला के नवाही इलाके का इकलौता फिल्ट्रेशन प्लांट कई रोज से बंद होने की वजह से इलाका मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे नजीर अहमद। आरिफ वाला के इलाके अड्डा थाना आमदियार पर लगा इकलौता फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि कई रोज से बंद पड़ा है। थाना आमदियार के रिहायशी जो कि साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। आवाम साफ पानी न होने की वजह से परेशान, गंदा पानी पीने पर मजबूर, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसके अलावा थाना आमदियार के गिरदोनवा में चक नंबर 131 ईबी और चक नंबर 123 ईबी और इसके अलावा दीगर करीबी चकूक में लगे फिल्ट्रेशन प्लांट जो कई महीनों से बंद पड़े, जिसकी वजह से इलाके की आवाम साफ पानी पीने से महरूम और घर में लगे मोटर पंप का गंदा पानी पीने से इलाके की आवाम तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। आवाम का सच न्यूज से कहना है, थाना आमदियार के गिरदोनवा के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट तकरीबन कई महीनों से बंद पड़े हैं, जो कि लाखों रुपए की मालियत के लगे हुए हैं, लेकिन उससे आवाम मुस्तफीद न हो रही है। लाखों रुपए के लगे फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि इंतजामिया की नाअहली की नजर इलाके की आवाम का और अड्डा थाना अहमदियार के रिहायशियों का आला काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा और जल्द से जल्द फिल्ट्रेशन प्लांट चालू करवाने की अपील, ताकि लाखों रुपए के फिल्ट्रेशन प्लांट के इस्तेमाल से आवाम मुस्तफीद हो सके, आवाम साफ पानी पी कर मोहल्ले की बीमारियों से मुब्तला होने से बच सके। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। सराय मुगल के नवाही गांव में नहर की भल सफाई न होने की वजह से मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे गुलाम अली वफा। ये सराय मुगल का नवाही गांव सोकन नहर है, जो कि जिला किशोर में एक अपनी पहचान रखता है, जो कि बुनियादी सहूलतों से महरूम है। गांव बरसाती नहर के ऊपर आबाद है और बरसाती नहर का हाल कुछ यूं है, इसकी भल सफाई न होने की वजह से ये बिल्कुल बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो जाता है और मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों ने जिले इंतजामिया से इस नहर की भल सफाई करवाने का मुतालबा किया है। जिन्होंने वोटर दे रहे हैं उन्होंने हक सारिਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ है, तो साड़ी तकलीफ ਨੂੰ रफा करन कि ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ मतलब पानी ਜਾ ਕੇ ਸੱਪ मतलब ਡੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਪ ਡੰਗ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। महकमे वालियां ਨੂੰ कई बारी दरखास्त की है, कोई खटाई नहीं हो रही, पानी खराब हो गए ने सारे, पीने वाला पानी नहीं रह गया, जानवर विच वड़ जे बाहर नहीं निकल सकता, बच्चा डिग पे उनदे तो नहीं निकलिया जांदा। सरकार ने कदा टेबिया पे ना डक्का पे ना कोई रोड़ियां ना भरपुर के कोई कख पै गया, सारे कितना चिर हो गया खटीची नु। ये जी मेहरबानी हो जाए तो जे खट्टी जाए तो चलो गरीब बच जाएंगे। जी असि इत्थे गरीब लोग बैठे सारे ते साडी इत्थे ना कोई बाड़ी बड़ी पई, सारा गंद बनया पे है। इनका यही मुतालबा है कि जितनी भी यहाँ की मुतलका इंतजामिया TMA का अमला है वो जल्द और जल्द इसके ऊपर जो है वो फिर फॉर एक्शन ले और इसका जो भर सफाई का काम है वो शुरू करवाए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं और यहाँ के जो बड़े लोग हैं वो बेशुमार बीमारियों से बच सकें। कैमरामैन फकीर हुसैन के साथ गुलाम अली, सच टीवी, सराय मुगल। लिया के इलाके चौक आजम में प्लास्टिक बैग्स का बेदरीक इस्तेमाल माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने लगा। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे जाहिद हुसैन। लिया जिला भर में प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ जिले इंतजामिया की जानिब से चलने वाली मुहिम एक बार फिर ठप होकर रह गई, जिसके बाद प्लास्टिक बैग के मुसलसल और बेदरीक इस्तेमाल से जहाँ सीवरेज और सफाई के मसाइल पैदा हो रहे हैं, नाकिस और गैर मियारी अस्ट्रा, सुनेजिस, ड्रिप्स और वेस्ट से बने इन प्लास्टिक बैग्स में दूध, दही, चाय, गोश्त, दही बले, फ्रूट चाट, पापड़ी चाट, होटलों से मिलने वाले मुख्तलिफ नौइयत के सालन लाने ले जाने की वजह से मुख्तलिफ अक़साम की मुतअद्दिद बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिनका शिकार होकर शहरी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। ईद कुर्बान पर गोश्त की नकलो हमल के लिए हर साइज के प्लास्टिक बैग, आटा, दालें, चीनी और दीगर अजनास का कारोबार प्लास्टिक के तोड़े इस्तेमाल हुए, जबकि म्यूनिसिपल कारपोरेशन की तरफ से भी प्लास्टिक के बैग्स शहरियों में तकसीम किए गए, जिसके बायस हालिया बारिशों के दौरान सीवरेज सिस्टम की बदतरीन बंदिश
मुताफन जरासीमों ने जन्म लिया। अवामी समाजी फलाई रफाई हलकों के अमाहिदीन ने मुतालबा किया है कि प्लास्टिक बैग के खिलाफ मुहिम को कामयाब बनाया जाए और इसके इस्तेमाल की हौसला शिकनी की जाए ताकि शहरियों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। कैमरामैन अली रजा के साथ जैद हुसैन, सच न्यूज़, चौक आज़म लिया। रहान में टंबर माफिया बेलगाम हो गया। गाजी पार्क में लगे हरे भरे दरख्तों का सफाया कर दिया गया, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। मलिक तुफैल की रिपोर्ट देखिए। जान में वज़ीर आज़म इमरान खान की कलीन पाकिस्तान प्रोग्राम की धज्जियां उड़ा दी गई। गाजी पार्क में लगे कीमती सायादार दरख्तों की सरेआम कटाई जारी है, जबकि एक तरफ वज़ीर आज़म दरख्त लगाने का कह रहे हैं तो दूसरी जानब दरख्तों को दिन दिहाड़े काट दिया गया। गाजी पार्क में लगे सारसाब दरख्त किसने काटे और किसकी इजाजत से काटे गए सवालात उठने लगे। दूसरी जानब म्यूनिसिपल पार्क में लगे दरख्त काटने के बावजूद खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। पार्क में माली और सिक्योरिटी गार्ड अरसे दराज से घर बैठे मुफ्त में तनख्वाहें वसूल करने लगे। दिन दिहाड़े पार्क में सारसाब दरख्तों का काटना इंतजामिया पर सवालिया निशान है। शहरों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मलिक अहमद के साथ सच न्यूज़ रोजहां। खबर दें आपको, मंडी बहाउद्दीन में माह आज़ादी का आगाज होते ही खुसूसी आज़ादी बाजार कायम कर दिया गया, जहां बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफान वड़ाइच। मादर वतन पाकिस्तान का वजूद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना की क़यादत में मुफक्कर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब की ताबीर की सूरत में मार्ज वजूद में आया। जैसे ही यौम आज़ादी का दिन नजदीक आता है, मंडी बहाउद्दीन शहर और गिरदनवा के बाजारों में सबज हलाली परचमों की बहार आ जाती है और गलियों बाजारों में सबज हलाली परचमों, बैजिज और झंडियों के खूबसूरत स्टॉल सज गए हैं, जहाँ पर बच्चे बड़े पाकिस्तानी सबज हलाली परचम, झंडियाँ और बैजिज खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि अपने घरों और दफातर को सजाकर हम यौम अगस्त आज़ादी का जश्न इंतहाई पुरजोश तरीका से मनाएंगे। शहरियों में जश्न आज़ादी का जोश व जज्बा दीदनी है। बच्चे बड़े सब ही आज़ादी की नेमत से सरशार दिखाई देते हैं। कैमरा टीम के साथ इरफान उड़ैच, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। मुल्क भर की तरह जिला कोहाट में भी जगह जगह स्टॉल सज गए, जहां बच्चे बड़े सभी झंडियां, बैजेस और टोपियों समेत दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट करेंगे अली बंगश। वतन अजीज का 74वां यौम आज़ादी 14 अगस्त को पूरे मुल्क में रवायती और मिली जोश और जज्बे की तैयारियां शुरू हैं। शहर भर में सबज हिलाली परचमों की बहार और आज़ादी के मुतवालों का जोश और जज्बा काबिल दीद है। शहरी कहते हैं कि हमें अपने बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान मिला है, इसलिए हम इस दिन को शायान शान तरीके से मनाते हैं। जी 14 अगस्त हमारी मशरानों की खून की शहादतों से हुआ है, हासिल हुआ है, तो हम इसकी शहादत को रायगाह जाने नहीं देंगे। 14 अगस्त को खूब जोश और जज्बे से हम मनाएंगे इंशाल्लाह। और हर पाकिस्तानी के दिल में 14 अगस्त की खुशियां वाज़ेह सबूत है। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। मानावाला में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं, शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए मियां शेर की। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मानावाला में भी 14 अगस्त की आमद से कबल गली मोहल्लों में स्टॉल सज गए। जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहरियों का जोश और जज्बा भी बढ़ने लगा। जश्न आज़ादी के हवाला से तकरीबात की तैयारियां भी अरूज पर पहुंच गई। जगह जगह कौमी परचम, कैप्स, बैच और झंडियों की खरीदो फरोख्त करने के स्टॉल भी सज गए हैं। 14 अगस्त करीब आ रही है और मानावाला के अड्डे में स्टॉल लग चुके हैं, ठीक है, और बैच और झंडियाँ वगैरह सभी लेके जा रहे हैं, बड़े और छोटे सारे, और अपने मोहल्ले में घरों को सजा रहे हैं, सजावट कर रहे हैं। जश्न आज़ादी के सिलसिले में मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और 14 अगस्त की खुशियाँ जो हैं उनको दुबाला करें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं ऑक्सीजन के मसाइल जो हैं इनको हल किया जा सके। मानावाला में बच्चे भी यौम आज़ादी मनाने का जज्बा लिए स्टॉल पर पहुंच गए हैं। 14 अगस्त के हवाला से बच्चे, बुजुर्ग, बड़े और तमाम मानावाला के शहरियों का जज्बा काबिल दीद है। मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। जश्न आज़ादी करीब आते ही दादू में तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। हर तरफ सबज हिलाली परचम की बहार है। शहरी जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। रिपोर्ट करेंगे शुएब थाई। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम। साथ
اردو میں جشن آزادی منانے کے لیے تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں. ہر طرف سبز لالی پرچم کی بہار ہے. جگہ جگہ جھنڈے جھنڈیاں بیجز ٹی شرٹس اور ٹوپیوں کی خریداری کرنے کے لیے بچے بڑے سب مصروف دکھائی دے رہے ہیں. ہم اس سال بھی جشن آزادی کو بڑے جوش و خروش سے منائیں گے انشاءاللہ. اور جیسے کہ ہم ہر سال کی طرح جھنڈیاں اور فلیگز وغیرہ وہ خریدتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں جو ہمیں ایک آزاد وطن ملا ہے. اپنے پیارے وطن کی آزادی کا جشن عید کی طرح منائیں گے. جشن آزادی ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں. اس وجہ سے ہم آئے یہاں پہ اسٹال پہ کچھ جشن آزادی کی ہوا سے کچھ شاپنگ کرنے. اس سال زور و شور سے منائیں گے انشاءاللہ. جو ہو سکے گا اپنے ملک کے لیے بھلائی کا سوچیں گے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ جشن آزادی کا دن قریب آتے ہی کاروبار میں اضافہ ہوا ہے. مہنگائی اپنی جگہ لیکن پیارے وطن کی آزادی کا جشن منانے کے لیے شہری پرجوش ہیں. اگلے سال کی نسبت اس دفعہ مہنگائی تو زیادہ ہے پر پھر بھی جیسے ہی جشن آزادی قریب آئی ہے لوگوں کو خریداری میں اضافہ ہو گیا ہے اور لوگ خوشی سے سامان خرید رہے ہیں. جشن آزادی منانے کے لیے دادو کے شہری بےتاب نظر آ رہے ہیں. دادو کے شہری جشن آزادی کا دن منانے کے لیے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی جشن آزادی کا دن بھرپور انداز سے منائیں گے. شعیب تھیم، سچ ٹی وی، دادو. ادھر چکوال کی تحصیل تلاگنگ میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں جوش و خروش کے ساتھ جاری ہیں. جگہ جگہ سٹال سج گئے ہیں. اسی پر رپورٹ کریں گے آفتاب ملک. ملک بھر کی طرح تلاگنگ میں بھی عرض وطن کی محبت کے اظہار اور جشن آزادی کی خوشیوں میں تیاریاں جاری ہیں. بچے، نوجوان اور بڑے سبھی جشن آزادی منانے کے لیے پرعزم نظر آتے ہیں. جگہ جگہ سٹال لگا دیے گئے ہیں جہاں شہری پاکستانی پرچم، بیجز، ہیٹس اور سٹکر خریدتے نظر آتے ہیں. وطن کی محبت کے اظہار کے لیے شہریوں نے سبز ہلالی پرچم دکانوں، گھروں اور عمارتوں پر لہرا دیے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ آفتاب ملک، سچ نیوز، تلاگنگ. ماہ آزادی شروع ہوتے ہی چکوال میں تقریبات کا آغاز ہو گیا. چکوال کے نجی اسکول میں جشن آزادی کی تقریب منعقد ہوئی جس میں اسکول کے طلباء اور طالبات نے ٹیبلو پیش کیے اور تقریب کے اہتمام پر کیک بھی کاٹا گیا. رپورٹ دیکھیے راجہ ثاقب کی. اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی آزادی کی تقریبات کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. نجی اسکول میں جشن آزادی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں اسکول کے طلباء و طالبات نے آزادی کے موضوع پر تقاریر کی اور ٹیبلو بھی پیش کیے. تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی سید محمد منیر حیدر شاہ نے جشن آزادی کا کیک بچوں کے ساتھ مل کر کاٹا اور تقاریر اور ٹیبلو پیش کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے. کیمرامین اجے تنویر حیدر کے ساتھ راجہ ثاقب، عباس بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال. علاقائی خبر نامے میں وقت ہو ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. فراہم کر دیے گئے. رپورٹ کریں گے عدنان شاہد. کرونا وبا کی بڑھتی ہوئی چوتھی لہر کے درمیان صوبے میں کووڈ 19 کیس لوڈ کو برقرار رکھنے اور صحت کی سہولیات کو مزید بہتر بنانے کے لیے مردان میڈیکل کمپلیکس اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال مردان کو جدید طبی آلات فراہم کر دیے گئے ہیں جن میں ایک ویڈیو برونوسکوپ، 10 آکسیجن کٹس، 2 ہائی فلو ناک تھراپی شامل ہیں. اور وہ بڑا سپورٹ دے گا. وہ اس طرح کی پیشنٹس جو اس سے پہلے یہاں پشاور کے ٹرشری ہاسپٹل میں یا اسلام آباد ان کو جانا پڑتا تھا اور وہاں ہماری ایکسپرٹیز اور اسپیشلسٹ اس لیول کے موجود ہیں. ان کو صرف جو اکوپمنٹ کی ڈیفیشنسی تھی تو ہم ہیلوٹاس کے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ اکوپمنٹ ہمیں پرووائڈ کیا. پروجیکٹ کا مقصد پاکستان میں کرونا کے خلاف مدافعت کی قومی صلاحیت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ مردان اور پشاور میں 34 صحت کی سہولیات میں امدادی سرگرمیوں کو بحال رکھنا ہے. جبکہ کیپ کووڈ پشاور کی نصر اللہ خان بابر میموریل ہسپتال میں 30 بستروں کے لیے سینٹرلائز آکسیجن سسٹم کی فراہمی پر بھی کام جاری ہے. تو اکوپمنٹس ہم دے رہے ہیں، یہ اس وقت ہم مردان اور پشاور میں دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمیں نیئر فیوچر میں جس کا آلریڈی ہم نے ٹینڈرڈ کیا ہے نصیر اللہ بابر ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ ہم 35 بیڈز کا آکسیجنیٹڈ وارڈز پلس ICU ہم جو سینٹرلائز آکسیجنیٹڈ سسٹم ہے وہ انسٹال کر رہے ہیں. ایک سال کے دوران اس منصوبے نے صوبائی اور ضلعی صحت کے محکموں کو طبی امداد، PPA اور صفائی کی سہولیات سے آراستہ کیا ہے. کیمرامین محمد حسن کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور. عارف والا میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت کے آفس میں بھی پودا لگا کر مانسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا. مہم کے دوران ضلع بھر میں 10,000 پودے لگائے جائیں گے. رپورٹ کریں گے جاوید رضا.
ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت کے آفس میں مونسون شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا گیا. اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ماہم آصف ملک نے ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ریاض احمد پی ٹی آئی کی ضلعی قیادت اور محکمہ زراعت کے ملازمین کے ہمراہ پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا. آج یہاں پہ ہم نے ایک پودا لگا کے شجرکاری کی مہم کا افتتاح کیا. ہم چاہتے ہیں ہمارے ضلع میں میکسیمم پودے لگیں. جو ہمیں گورنمنٹ نے ایک ویژن دیا ہے اس ویژن کو ہم آگے لے کے چلیں. جتنے زیادہ ہم درخت لگائیں گے ہمارے ماحول کے لیے بھی اچھا ہے, ہمارے لیے بھی اچھا ہے. اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ریاض احمد نے بتایا کہ محکمہ زراعت ضلع بھر میں 10,000 پودے لگوائے گا. وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق ضلع بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز کر چکا ہے. اس مہم کے دوران محکمہ زراعت توسیع تقریباً 10,000 پودے دسمبر تک لگائے گا. 3,000 پودے اب تک لگائے جا چکے ہیں. زیادہ سے زیادہ پودے لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ ماحول کو سرسبز و شاداب بنایا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید رضا وٹو, سچ ٹی وی, عارف والا. ملک بھر کی طرح حجرہ شاہ مقیم میں بھی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا. ایک دن میں 500 سے زائد پودے لگائے گئے. میاں احسان الہی کی رپورٹ دیکھیے. ملک بھر کی طرح حجرہ شاہ مقیم میں بھی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے زیر اہتمام 1 اگست سے گرین ویک منایا جا رہا ہے, جس میں ہفتہ بھر کے لیے سکول, کالجز, اسٹیڈیم, گھروں اور چوک چوراہوں سمیت سرکاری و غیر سرکاری دفاتر میں پودے لگائے جا رہے ہیں. اس مہم کے تحت حجرہ شاہ مقیم میں بھی متعدد مقامات پر پودے لگا کر پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے کا نعرہ بلند کیا گیا. اس موقع پر پولیس آفیسر علی رضا شریف کا کہنا تھا, دعوت اسلامی والے ادھر آئے اور یہاں پہ ایک پودا کی مہم شروع کی گئی, جو کہ دعوت اسلامی کے بانی امیر اہل سنت کا نعرہ بھی ہے کہ پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. ڈویژن نگران دعوت اسلامی صفدر حسین نے فاسٹ پارک میں پودے لگاتے ہوئے کہا, دعوت اسلامی پورے پاکستان میں انشاءاللہ عزوجل 26 لاکھ پودے لگائے گی اور اسے درخت بھی بنائے گی. حجرہ شاہ مقیم اسٹیڈیم کے عہدیدار محمد اکرم نے دعوت اسلامی کی اس کاوش کو سراہا. اس پودا لگانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں آکسیجن ملے گی اور جو فضائی آلودگی ہے ہمارے ملک میں وہ ختم ہوگی. علاوہ ازیں FGRF کے تحت اس گرین ویک میں حجرہ کی سماجی, سیاسی اور صحافتی تنظیموں نے بھرپور شرکت کر کے ایک ہی دن میں 500 سے زائد پودے لگائے. کیمرہ مین شفقت علی کے ساتھ میاں احسان الہی, سچ نیوز, حجرہ شاہ مقیم. خانوال میں موٹر وے پولیس اور دعوت اسلامی کے اشتراک سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا. کلین اینڈ گرین مہم کے تحت 5,000 پودے لگائے جائیں گے. رپورٹ کریں گے رانا طاہر. موٹر وے پولیس اور دعوت اسلامی نے مل کر شام کو ٹال پلازا M4 اور M5 پر شجرکاری مہم کے تحت درخت لگائے. اس موقع پر موٹر وے پولیس افسران کا کہنا تھا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے, زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہیں کیونکہ درخت ماحول دوست ہوتے ہیں. اسی لیے ہم اپنے سیکٹر اوج شریف سے عبدالحکیم تک اس سیزن میں آج سے 5,000 پودے لگانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. آج سے شجرکاری کا آغاز موٹر وے M5 اور 4 پہ کیا گیا ہے. پاکستان کو سرسبز اور شاداب بنانے کا جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے, انشاءاللہ ہم اس کو اپنے حد تک جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں کر کے پورا کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہم نے 5,000 پودے لگانے کا جو ڈرائیو ہے اس کا آغاز کیا ہے. آج پہلے دن ہم نے 300 پودے لگائے ہیں اور انشاءاللہ اس کمپین کے تحت ٹوٹل 5,000 پودے لگائے جائیں گے. اس موقع پر DSP ہیڈ کوارٹر چوہدری مسرور علی, DSP بیٹ 22 محمد حسن بٹی, انسپیکٹر گلزار حسین اور دعوت اسلامی کے امیر ذیشان اتاری نے بھی پودے لگا کر باقاعدہ طور پر اس مہم کا آغاز کیا. کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کو مؤثر بنانے کے لیے موٹر وے پولیس اور دعوت اسلامی کی مشترکہ کاوشیں قابل ستائش ہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا محمد طاہر, بیورو چیف, سچ ٹی وی, خانوال. ملک بھر کی طرح چارسدہ میں بھی مانسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا. رپورٹ کریں گے سراج علی. صوبے کی دیگر اضلاع کی طرح چارسدہ میں بھی مونسون شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا گیا ہے, جس کے تحت چارسدہ میں 3 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے. اس حوالے سے مہم کی افتتاحی تقریب محکمہ اریگیشن کی جانب سے دلدار گڑی کے مقام پر منعقد ہوئی, جس میں ڈپٹی کمشنر سمیت ایکسین اریگیشن
जमान खान एडिशनल डिप्टी असिस्टेंट इस मौका पर कायदा मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मुहिम के दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमों के तावन से जिला भर में 3 लाख के करीब पौधे लगाए जाएंगे। मुहिम की कामयाबी और पौधों की देखभाल के लिए खुसूसी प्लान तश्कील दिया गया है ताकि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर उनको कामयाब किया जाए। मुहिम के दौरान सबसे ज्यादा पौधे दरियाओं के किनारे और बंजर जमीन पर लगाए जाएंगे ताकि न सिर्फ जमीनी कटाव को रोका जा सके बल्कि ज्यादा से ज्यादा जमीन को सरसब बनाया जा सके। कैमरामैन अफसर अली के साथ सिराज अली, नुमाइंदा सच टीवी, चारसद्दा। मुल्क को सरसब्ज़ शादाब बनाने का मिशन तरनोल में वफाकी वजीर असद उमर के हल्का NA54 में इस्लामाबाद बस टर्मिनल के ज़रिए एहतमाम शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे हाफिज शेर अफसर। तरनौल में इस्लामाबाद बस टर्मिनल के ज़ेरे तमाम सरजो शादाब शजरकारी मुहिम के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल से किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर मुमलकत बराए सियासी उमूर मलक मोहम्मद आमिर डोगर और वफाकी वजीर असद उमर थे। तकरीब के मेहमान खुसूसी ने हल्का NA54 में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मलक मोहम्मद आमिर डोगर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान के ग्रीन पाकिस्तान विजन के तहत ये आगाही जरूरी है कि मकसद सिर्फ पौधा लगाना नहीं बल्कि उसकी देखभाल भी करना है। और मजीद उन्होंने कहा कि जैसे प्री मानसून का आगाज हुआ, प्लांटेशन हुई और उसके बाद आगे इसको पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे फैला रहे हैं और ख्वाहिश है कि करोड़ों की तादाद में पौधे लगाए जाएं। और इस मौके पर वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि पौधा लगाने के बाद ही असल काम शुरू हो जाता है। हमारे लोग पौधा लगाकर बरीउ जिम्मा हो जाते हैं। और मजीद उन्होंने कहा कि ये 2 लाख पौधों का हदफ लगाया गया है। ये सिर्फ इधर का है, पूरा तो आपको पता है कि जो प्रोग्राम बनाया है वो 10 अरब पौधे 5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर लगने हैं। और उसका तरीक़ेकार यही होता है कि पहले साल जितने लगते हैं अगले साल उससे 2 से 3 गुना ज्यादा लगते हैं, फिर उससे ज्यादा। अभी अमीन असलम साहब जो हैं क्लाइमेट के जो वजीर आजम के मुशीर हैं, उनके साथ मीटिंग भी हुई थी। इमरान खान साहब का जो विजन था उसकी सारी दुनिया के अंदर पजीराई हो रही है इस प्रोग्राम की, तो ये इस्लामाबाद और NA54 भी उसके अंदर ये हिस्सा डाल रहा है। शजरकारी मुहिम की तकरीब में NHA के अफसरान चौधरी सबात, इंस्पेक्टर हामिद खान, कोऑर्डिनेटर खान बहादुर खान, मलक जुमशेद मुगल के अलावा सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। आखिर में इस्लामाबाद बस टर्मिनल के आनर राना अनवार अहमद ने तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज, तरनौल। सूबाई हुकूमत के मुशीर बराए जेल खाना जात शफीउल्लाह खान और IG जेल खाना जात खालिद अब्बास ने पाराचनार सब जेल का दौरा किया। जेल में कैदियों से मिले, कैदियों ने जेल में दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया। रिपोर्ट करेंगे जावेद बंगश। सूबाई हुकूमत की मुशीर बराए जिलहाना जात शफीउल्लाह खान और IG जिलहाना जात खालिद अब्बास ने पाराचनार सब जेल का दौरा किया। जेल में कैदियों से मिले, कैदियों ने जेल में दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया। IG जिलहाना जात खालिद अब्बास ने कहा कि जेल में दरपेश मसाइल फौरी हल किए जा रहे हैं। और मिनिस्टर साहब पहली दफा किसी भी NMDs के जेल में आए हैं और हमने पाराचनार और सदे का इंतखाब किया, तो मुझे तो खुशी हुई है। यहाँ एक हमारी स्टैंडर्ड के मुताबिक एक जेल यहाँ पर पहले से मौजूद है और इंशाल्लाह इनके जो भी मसाइल हैं आपके सामने, उनकी बिजली का मसला था, पानी का मसला था, तो इनके लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जनरेटर का बहुत जल्द अज जल्द बंदोबस्त करूं। पानी का ट्यूबवेल जो है वो PC1 में मंजूर हो गया है और इंशाल्लाह बाकी भी जितने इनके जो मेडिसिन के हवाले से इनके मसाइल हैं, जो कैदियों के दूसरे मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह जल्द हल कर लेंगे। पार्टी इंजमाम के बाद जिलहाना जात के वजीर मुशीर या IG जिलहाना जात का किसी कबायली जम अजला का पहला दौरा है। जावेद बंगश, सच न्यूज, पाराचनार, जिले कोरम। अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदगंज शक्कर के सालाना उर्स की 15 रोजा रसूमात का आगाज हो गया। कोरोना वायरस के बायस आम जायरीन के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। रिपोर्ट करेंगे चौधरी तारिक। बर्रे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी शायर बुजुर्ग हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर की 15 रोजा सालाना 779वां उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज कल से शुरू हो चुका है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि कोरोना वायरस की चौथी लहर के पेश नजर रसूमात को अंधाई महदूद कर दिया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से अंधाई सख्त इकदाम किए गए हैं। आम ज़ायरीन को रोकने के लिए गेट लगा दिए गए हैं। कोरोना वायरस के पेश नजर सिर्फ दवान फैमिली ही रसूमात जो कि वैक्सीनेट है उन्हें इजाजत होगी। 5 मुहर्रम और राम को बिजली दरवाजा 5 रोज के लिए खोला जाता है, लेकिन कोरोना वायरस के पेश नजर अंधाई महदूद कर दिया गया है और बिजली दरवाजा सिर्फ 2 दिन के लिए खोला जाएगा।
कैमरा मैन वी के साथ तारक अली, साज टीवी, पाकिस्तान। जिला कुरम में मुहर्रम उल हराम के दौरान हम आहंगी और भाईचारे की फजा को बरकरार रखने के लिए ग्रैंड जिरगा मुनाकिद हुआ। रिपोर्ट करेंगे जावेद बंगश। भारतनार मुहर्रम अल हराम के हवाले से मुनक्किद अमन जरगी से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर कुरम आफाक वजीर ब्रिगेडियर नजब अब्बास अवाना और दीगर मैदीनी शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मुहर्रम अल हराम अमन व भाईचारे का महीना है। जिला भर में इन आयाम को इंतहाई अकीदत से मनाया जाएगा। मुहर्रम के हवाले से अमन जरगी मुनक्किद होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में जो हालात हैं और ख़ासकर अमेरिकन के इनखला के बाद, तो हमें एक्स्ट्रा विजिलेंट रहना पड़ेगा। बहुत अज़मत का महीना है, बहुत इबादत का महीना है। इसमें हर सूरत में अमन बरकरार रखेंगे। इसमें हम मुशरान डिस्ट्रिक्ट कुरम हर किस्म की कुर्बानी देंगे। तमाम मकातिब से ताल्लुक रखने वाले कबाइलिया मैदीन इंतजामिया व सिक्योरिटी फोर्सेस को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया और कहा कि अमन की फिजा को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर की साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। जावेद बंगश, सच न्यूज, पाराचिनार, जिले कुरम। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आने से पहले ही खैरपुर में अलम पाक बनाने और सजाने की काम में तेजी आ गई है। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। मुहर्रम उल हराम के चांद नजर आने से पहले ही खैरपुर में अलम पाक बनाने और सजाने के काम में तेजी आ गई है। मुख्तलिफ साइज और डिजाइन के अलम पाक दुकानों पर मौजूद है। जैसे कि कारीगरों ने अपनी महारत से कारीगरी और नफासत के साथ खैरपुर में अलम पाक बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि बनाता हूँ, मेरे बेटे हैं वो बनाते हैं, बाकी कुछ हम मुझे लेकर आते हैं लाहौर से। इसका मटेरियल है, कुछ लाहौर से लेकर आते हैं, कुछ कराची से लेकर आते हैं। ये जो अलम है हम खुद तैयार करते हैं, तकरीबन पूरे साल ही बनाते हैं। कुछ बने बनाए लेके आते हैं, कुछ चिन्नौर से लेके आते हैं, लाहौर से लेके आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से लेके आते हैं। और तकरीबन 4,000 से लग के 4 लाख तक का भी है, 5 लाख तक का भी है। 10-15 दिन लग जाता है भाई, छोटे में 1 दिन 2 दिन लग जाता है। एक कारीगर काम करते हैं इधर, जो इसमें बहुत बड़ी मेहनत है, मेहनत से काम करते हैं मजदूर लोग, माना अच्छी चीज लगाते हैं। अलम पाक की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी, चिन्योट और दीगर साजो सामान लाहौर से मंगवा कर अलम पाक की तैयारी में 1 हफ्ते से 15 दिन तक की जाती है। कैमरा टीम के साथ अलीगढ़ गोपांग, सच न्यूज खैरपुर। अपर और अक्सई में जारी सूबाई फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में नरियाब यूनाइटेड ने और अक्सई फुटबॉल क्लब को 2 गोल से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। असमतुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। अपर और अगजई इलाका गलजू में डायरेक्टर स्पोर्ट्स अब्दुल्ला शाह और स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद हुसैन ने यूथ एसोसिएशन के ताउन से जारी सूबाई फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसमें पेशावर, कोहाट, हंगू, दर अदम खेल और नरियाब समेत दीगर इलाकों से 20 फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया था। इख्तिताम पजीर होने पर फाइनल मैच में पहुंचने वाली 2 फुटबॉल टीमें और अगजई फुटबॉल क्लब और नरियाब यूनाइटेड के दरमियान गलजू फुटबॉल ग्राउंड पर फाइनल मैच खेला गया। दोनों टीमों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले के बाद नरियाब यूनाइटेड ने पहले हाफ में 3 गोल किए, जबकि औरंगजेब फुटबॉल क्लब ने दूसरे हाफ में 1 गोल किया। दूसरा हाफ खत्म होने पर नरियाब यूनाइटेड ने 2 गोल की बढ़त से फाइनल में जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल मैच तकरीब में मेहमानी खसूसी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खालिद समेत कसीर तादाद में तमाशाई ग्राउंड में मौजूद थे। इस मौका पर मेहमानी खसूसी डिप्टी कमिश्नर जिला औरंगजेब मोहम्मद खालिद ने खिलाड़ियों से खिताब करते हुए कहा कि खेल कूद सेहतमंद मुआशरे का जामिन है। औरंगजेब के जवानों को खेल कूद के मौके फराहम करने के लिए तमाम तर सहूलियात की फराहमी के साथ साथ गलजो में स्पोर्ट्स अकेडमी और स्पोर्ट्स ग्राउंड तमीर किए जाएंगे, जिससे जवानों को खेल कूद के बेहतर मौके फराहम होकर जवानों में टैलेंट उजागर करने में मदद मिलेगी। तकरीब के आखिर में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खालिद ने एसी अदनान अहमद और स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद हुसैन के हमरा फाइनल में जीतने वाले नरियाब यूनाइटेड फुटबॉल टीम और रनर अप टीम और अगजई फुटबॉल क्लब के कप्तानों में ट्रॉफियां, नकद इनामात और स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़ जिला और अगजई। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का शुमार पाकिस्तान में बिजली की बेहतरीन तकसीम कार कंपनियों में होता है, जो कि अपनी बेहतर सर्विसेज और सार्फिन तक बिजली की फराहमी में बेहतरीन कंपनीज में शुमार होती हैं। आइस्को रीजन में बिजली की फराहमी में अहम किरदार फील्ड में काम करने वाले लाइन स्टाफ की वजह से मुमकिन होता है। हाल में तैनात होने वाले आइस्को चीफ डॉक्टर अमजद खान का कहना है कि लाइन स्टाफ हमारा कीमती असासा है और वो लाइन पर काम करते हुए तमाम एहतियाती और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। आइस्को चीफ ने लाइन स्टाफ को हिदायत जारी की कि काम के दौरान तमाम सेफ्टी मेजर्स को मद्देनजर रखा जाए ताकि हादसात से महफूज रहा जा सके। आइस्को चीफ का कहना है कि सर्कल और डिविजनल सतह पर सेफ्टी सेमिनार्स का इनेकाद किया जाए ताकि काम के दौरान सेफ्टी कल्चर को फरोग दिया जा सके। कोट अद्दू में 5 बस्तियों को शहर के कब्रिस्तान और जनाजागाह से मिलाने वाले रोड का काम काबजीन ने रोक दिया।
जिस पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। रिपोर्ट करेंगे सज्जाद काज़मी। कोट अदू 5 बस्तियों का राब्ता रोड न होने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना था। वजीर ममलकत मियां शबीर अली कुरैशी की जानिब से दिया गया 1 किलोमीटर रोड जो कि बस्ती दोस्त वाला, बस्ती शेर वाला, बस्ती अली वाला, बस्ती टाली वाला, बस्ती खंड का रास्ता जनाजा गाह और कब्रिस्तान से मिलाने के लिए दिया गया है, लेकिन सरकारी अराजी पर बाअसर काबजीन की जानिब से काम रुकवा दिया गया, जिस पर अहले इलाका सिरापा एहतजाज हैं। असल मसला ये है कि ये आमना महीने ज़राई मकासद के लिए रकबा हासिल किया था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं दुकान तमीर की है और पुख्ता घर भी तमीर किया है। और ये बात महकमा माल के नोटिस में भी थी कि घर तमीर हो रहा है और दुकान तमीर, लेकिन उन्होंने कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। लाखों की मालियत के दरख्त चोरी कर दिए। अब वो बनवाश बन के आगे बैठी हुई है, रास्ता नहीं बनने दे रही, जो कि मियां शबीर अली कुरैशी साहब की एक खुसूसी ग्रांट से बन रहा है। और वहाँ से जनाजा गाह भी जनाजे के लिए रास्ता मंजूर पे लिहाजा सागो रस्ते दी बहुत शदीद किल्लत है पई। इस वास्ते 5-6 बार एक्सवेटर आंदे वाल बंद थी वेंदे, इंदा बेटा जना पुलिस वाला है वो आके बंद करवा रहे ने काम। लिहाजा वजीर आला से सारी ये दरखास्त है कि काम मजीद चलिया वने, लिहाजा जल्द और जल्द मुकम्मल थिया वने रोड कब्जे सारे मां अमना भाई 5-6 बस्ते रोड लग जाए पहले रोड हाई पे पहले ने आगे ना मतलब बस तलवार थे तो काफी बस असली रही है बस अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार से मुतालबा किया है कि वजीर आजम के विजन के मुताबिक काबजीन से सरकारी रकबाबाज गुजार करा के रोड का काम मुकम्मल कराया जाए। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज, कोट अदू। कोट अदू से इसहाक काज़मी की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। और अब आपको बताएं कि लिया में गुलरेज होटल ता हुसन चौक तक तामीर होने वाली सड़क की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल पर शहरी फट पड़े। शहरियों ने हुकाम बाला से जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। किसी भी मुल्क की मईशत की ज़बूहाली और उसकी जड़ों को खोखला करने में करप्शन और बदगुमानी का अहम किरदार होता है। लिया में गुलरेज होटल था हसन चौक कई किलोमीटर तवील 20 फुट चौड़ी सड़क की तामीर में मुबैना तौर पर इस्तेमाल होने वाले नाकिस मटीरियल की कहानी सुनते हैं शहरियों की जबानी। जी गुलरेज तो हसन चौक सड़क बनती पी है, इंतहाई नाकिस किस्म का मटीरियल इस्तेमाल किया वेंदा पे। गुलरेज होटल ता हसन चौक रोड इंतहाई नाकिस मटीरियल न तैयार थींदा पे। एक कुछ दीवारा बात टूट फूट का शिकार थी वैसी। जिले अफसरान और महकमा एंटी करप्शन को चाहिए जिला भर में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए बदउनवानी को रोकने के साथ मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिम्मेदारान को सजा दिलवाने में किरदार अदा करें। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज लिया। कोट सब्जल के इलाके संजरपुर का एलपी रोड कचरा कुंजी में तब्दील हो गया। गंदगी के बाद शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। रिपोर्ट करेंगे हमादुल्ला। कोट सब्जल के इलाके संजरपुर शहर के एलपी रोड कचरा कुंडी बन गया और पूरा शहर कूड़ा करकट की नजर है। इंतजामिया की गफलत से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। शहरियों और राहगीरों का गुजरना भी मुश्किल हो गया है, जिससे अहले इलाका की परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। शहरियों की फरियाद सुनने वाली इंतजामिया लंबी तान के सो गई है। जगह जगह गंदगी के ढेर होने की वजह से ताफुन फैल रहा है। शहरियों का कहना है कि हमारी आला हुकाम DC रहीम यार खान, असिस्टेंट कमिश्नर सादिक अब्बास से अपील है कि इस गंदगी के ढेरों को साफ किया जाए ताकि आने जाने में आसानी पैदा हो और बीमारियों से बच सकें। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच टीवी, कोट सब्जल। इलाकाई खबरनामे से फिर वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट schtv.pk। देखते रहिए सच।